momentous occasion, the opening ceremony of the 25th UP State Inter-School Shooting Championship, hosted with great pride at Indirapuram Public School, Indirapuram. This championship brings together more than 1,100 young sharpshooters from across the state, all ready to aim high, stay focused, and make their mark in the world of shooting sports. इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम में आयोजित 25वीं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर विद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप के भव्य उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ के सहयोग से और इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम के आतिथ्य में हो रहा है, जो हमारे लिए अत्यंत गर्व और उत्साह का विषय है। और इस शूटिंग चैंपियनशिप में हम भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश से लगभग 1100 निशानेबाज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अनुशासन, एकाग्रता और खेल भावना की मिसाल बनेंगे। साथ ही अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। We now invite our esteemed dignitaries to kindly come forward for the lighting of It is indeed a proud moment for all of us at Indirapuram Public School, Indirapuram, as we come together to inaugurate the 25th UP State Inter-School Shooting Championship. Organized under the aegis of the UP State Rifle Association, Lucknow. To host this prestigious championship is not just an honor, but a reflection of our school's continuing commitment to excellence, both in academics and in sports. We feel deeply privileged to welcome Mr. Ranjan Sodhi, a name that commands respect in the world of shooting, a former world #1 world record holder and a recipient of Arjun and Khel Ratna Award. His journey is a testament to focus, determination, and the pursuit of perfection. We are equally honored to have Shri Shyam Singh Yadav ji, President of the UP State Rifle Association, a visionary leader whose efforts have given new direction and strength to shooting sports across the state. A very warm welcome to Mr. Karan Bhushan Singh, Honorable Member of Parliament and the President of the UP Wrestling Association, a dynamic youth leader and a sharpshooter whose encouragement and involvement in sports continue to inspire countless youngsters to stay active, confident, and goal-driven. We are glad to have with us Mr. G.S. Singh, Honorary Secretary General of UP State Rifle Association, Mr. Ankit Tyagi, National Level Shooter, Mr. Sanjay Kumar Tripathi, Secretary Indian Red Cross Society, Gautam Budh Nagar Branch. Your presence adds great value and inspiration and motivation to this occasion. We are especially honored by the presence of Mrs. Shalini Singh, the President of Indirapuram Group of Institutions, whose vision, foresight, and constant encouragement continue to guide every initiative we undertake. We also extend a heartfelt welcome to the heads from our own institutions, Ms. Renu Sharma and Professor Tara Shankar, leaders who represent the strength and growth of the Indirapuram family. This championship brings together over 1,100 young sharpshooters from across the state, each one a story of passion, perseverance, and dreams. The sport of shooting demands a rare combination of patience, precision, and mental strength, qualities that also define success in life. At Indirapuram Public School, Indirapuram, we believe that education must ignite both the mind and the spirit. Competition like these give our young learners the encourage to aim high, the strength to face challenges, and the discipline
to stay true to their goals. As the championship unfolds, I urge every participant to remember, victory is not always measured by medals, but by the courage to compete, the lessons learned, and the friendships formed along the way. Before I conclude, I am delighted to share a wonderful announcement made by our President, Mrs. Shalini Singh. The President, as a gesture of encouragement and recognition, she has graciously announced that all 6 of our students who have recently qualified for the National Level Shooting Championship will be presented with professional shooting shoes from the institution. This thoughtful initiative truly reflects her unwavering commitment to nurturing young talent and motivating them to reach even greater heights in the field of sports. आदरणीय रंजन सोढी जी, परम श्रद्धेय श्याम सिंह यादव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसरगंज आदरणीय करण भूषण सिंह जी, ग्रुप ऑफ स्कूल्स इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की अध्यक्षा परम आदरणीय शालिनी सिंह जी, मिस्टर त्यागी, संजय त्रिपाठी जी, मंच पर आगे की लाइनों में जितने भी लोग हैं, आगे से पीछे तक सारे के सारे शूटर्स, यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स, सारे कोचेज, सारे पेरेंट्स, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के ही नहीं अन्य स्कूल्स के सारे प्रोफेसर्स, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, उन सब का, पत्रकार बंधुओं का, समस्त मेरे सामने की नशिस्तों में जितने भी लोग हैं, उन सब का आज मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज अपने बीच में एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को, खेलों के इस कार्यक्रम में एक ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को अपने बीच में पाकर के आदरणीय रंजन सोढी, जिनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया से वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक हासिल करने वाले सबसे युवा और सबसे पहले खिलाड़ी थे। अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न अवार्ड, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में लहराया, हम लोग बहुत बहुत प्राउड करते हैं माननीय रंजन सोढी पर। दूसरे हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, जिनके सहयोग से, जिनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 डिसिप्लिन्स में रिनाउंड शॉट ऑफ इंडिया और खेलों के लिए हमेशा जागरूक रहने वाले, वो न सिर्फ शूटिंग, गोल्फ भी खेलते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं और भारतवर्ष की बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हिमालयन कार रैली में भी हिस्सा ले चुके हैं। इनके लिए मैं चाहता हूं कि सारी भीड़ एक बार आदरणीय करण भूषण सिंह जी, सांसद तो बाद में हैं, पहले हम लोगों के बीच के एक साथी शूटर हैं और मैं इस मंच से, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत बेबाक बात है कि इनके परिवार ने, आदरणीय नेताजी ने हिंदुस्तान को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष रहते हुए जितने मेडल दिलाए, भारतवर्ष की स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनके कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ जब ओलंपिक से लेकर के कॉमनवेल्थ, एशियाड, सारे के सारे रेसलिंग के मेडल उन्हीं के नेतृत्व में आए। साथियों, बहुत अतिथि हैं, मैं बहुत लंबे समय तक आपके बीच में नहीं रहना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं
कि मैं अभिभूत हूं जिस तरह की व्यवस्थाएं, और अगर एक आदमी का नाम, एक व्यक्ति का नाम मैं यहां न लूंगा आज इस मंच से, तो शायद ये कार्यक्रम पूरा का पूरा अधूरा रहेगा। वो नाम है प्रशांत सिंह। मैं चाहता हूं उनके नाम पर भी बहुत तालियां बजनी चाहिए। जिस तरह की बहुत ही समुचित व्यवस्था करी है उन्होंने, इनके लिए भी मैं यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही मैन टू मैन मार्किंग, बिल्कुल पॉइंट वाइज जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो रहा है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने तो खड़ा हूँ, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1, बट इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा आपको इसके बारे में। सो आई कम फ्रॉम फिरोजपुर, विच इज अ स्मॉल टाउन ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. Due to lack of schools, my father decided to send me to Delhi for better education. So I came here. जब मैं छोटा था मेरे से पूछते थे क्या करोगे बड़े होके, सो मैं कहता था कि जी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा. तो वो हंसते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा. बट आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडियन चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो शायद मैं गलत नहीं था. So initially, I used to play football in school. I also played under 16 for Delhi. And पर शूटिंग का हमेशा से शौक था, गन्स का हमेशा से शौक था, तो धीरे धीरे शूटिंग में आया. एंड कमिंग फ्रॉम पंजाब, हमें गन्स को नेचुरली हमें पता कैसे चलानी है, फॉर गुड रीजंस. आजकल भी पंजाब के जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ पे आपके पास अपना ट्रैक्टर है और बंदूक है, तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर. वो कहते हैं कि चलो खाना तो खिला लेगा मेरी बेटी को और ध्यान भी रख लेगा, तो बस दो चीज़ें चाहिए अगर कोई शादी करनी है पंजाब में तो. सो व्हेन आई केम टू दिल्ली, धीरे धीरे शूटिंग शुरू करी. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. मेरे को ना लोग पूछते थे क्या करेगा. 2020 में मैं एक बार विश्वनाथ आनंद को मिला, वो वर्ल्ड चैंपियन बने. और मैंने देखा, मैंने कहा वर्ल्ड चैंपियन, किसी ने मेरे को बोला वर्ल्ड नंबर 1 है, तो मैंने कहा मैं भी बनूंगा. सो मैंने क्या किया, मैंने घर में आके एक पेपर में लिख दिया, आई विल बी वर्ल्ड नंबर 1 one day. एंड इट वॉज इन माई रूम फॉर सो मेनी ईयर्स, यू विल नॉट बिलीव. एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू लुक एट इट. वो कहते हैं तू डिस्ट्रिक्ट तो जीत जा, स्टेट तो जीत जा, वर्ल्ड नंबर 1 तो बात की बात है. बट आई हैड मेड अप माई माइंड, नो आई विल बी वर्ल्ड नंबर 1. And I started working towards it. So what I'm trying to tell you is you need dedication, you need a lot of hard work. And when I say hard work, it doesn't mean that you spend hours and hours on the range or doing something. Quality, not quantity. That's the thing, आप अगर आप 2 घंटे पढ़ाई भी करो या शूटिंग भी करो, कुछ भी करो, बट वो क्वालिटी होनी चाहिए, not quantity. So I started working hard towards that goal. And one fine day I achieved. became world number 1. एंड ये बड़ी फनी बात है, जब मैं वर्ल्ड नंबर 1 बना, मैंने ना पहले से बोला हुआ था जिस दिन मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगा तो मैं सरोवर में डुबकी मारूंगा. जैसे गोल्डन टेम्पल में हमारा सरोवर होता है ना, वहाँ डुबकी मारूंगा. अब मैं इटली में था और वो नवंबर का मौसम, ठंड, मैं होटल में था. तो मैंने कहा यार, मैंने तो बोला हुआ है कि वर्ल्ड नंबर 1 बन के मैंने सरोवर में डुबकी मारनी है. मैं रिसेप्शन में गया, मैंने उनसे पूछा स्विमिंग पूल, कहते हैं जी है पर पानी नहीं है. मैंने कहा बाल्टी है, कहते नहीं है, यूरोप में बाल्टी नहीं होती किसी होटल में. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, वहाँ टब भी नहीं था उस वाले होटल में. तो बाहर ना लेक गार्दा, बड़ी मशहूर लेक है, नवंबर एंड का मौसम था, -डिग्री, मैं कूद गया. तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम स्पोर्ट्समैन में एक पागलपन होता है, एंड बिना पागलपन के ना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू हैव दैट मैडनेस, you got to have a dream and you got to chase it with madness. And believe me, anything is possible. If you have self-belief, believe in yourself what you can do, and that I can do this, then there's nothing that can stop you. So for all the young minds here that I see, it's very important to play some sports or the other. आजकल स्कूल के अंदर कोई बच्चे जो होते हैं, attention जिनका में प्रॉब्लम है या थोड़े हाइपर हैं, उनको टीचर कहती हैं कि जाओ जाके ना शूटिंग करो या चेस खेलो. सो इट्स अदरवाइज ऑल्सो दिस इज अ ग्रेट स्पोर्ट, योग है. मैं तो इसको शूटिंग को एक योग ही मानता हूँ. सो यही चीज़ें हैं कुछ जो आप लोगों को आज पेरेंट्स के लिए, आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स है. आई विल गिव यू अ स्मॉल स्टोरी अबाउट दिस कपल आई नो. मैं हमेशा सबको बोलता हूँ.
सो दे वर बोथ IAS ऑफिसर्स। उन्होंने बच्चे से पूछा बड़े होके क्या बनना है, तो वो कहता कि मैंने को स्नेक चामर बनना है, सपेरा बनना है। तो वो दोनों IAS ऑफिसर, वो घबरा गई, क्या बोल रहा है। तो जाके उन्होंने बात करी काउंसलर से, एंड द काउंसलर ने बोला दिस बॉय इज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, ही वांट्स टू बी अ स्नेक चार्मर, ही लेफ्ट स्कूल एंड एवरीथिंग, एंड टुडे ही इज इन अफ्रीका वर्किंग फॉर नेशनल जियोग्राफिक एंड ही इज अर्निंग लाइक मिलियंस, एंड द पेरेंट्स आर सो प्राउड। सो टुडे द यंग माइंड थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। सो कल को आपके बच्चे बोले आपको कि जी इसमें शूटिंग करना है, कुछ करना है, तो प्लीज इंकरेज करिए। अब मोदी जी जब चाय बेच रहे हैं, उनको थोड़ी पता था प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या राहुल गांधी को थोड़ी पता था कि इतनी मुश्किल होगी नहीं बन पाएंगे, या अरविंद केजरीवाल जब पीछे अन्ना हजारे के चल रहे थे तो उनको नहीं पता, उनको कोई पता था कि ऐसा करेंगे, शायद उनको पता हो, वो छोड़ो, उनको शायद पता हो, बट ये चीज़ें कुछ हैं जो मैं कह रहा हूँ। सो यू हैव टू ड्रीम, अदरवाइज तो कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। और एक डिसिप्लिन के साथ, अब जैसे मेंशन कर रहे थे GS सिंह जी, श्याम सिंह यादव जी के बारे में कि जी 5 इवेंट्स में राउंड शॉट हैं। अब इनके बारे में इन दोनों ने, GS सिंह जी ने और श्याम सिंह यादव जी ने, मेरे को बचपन से देखा है। दे हैव सीन मी एज ग्रोन। मैं इनके बच्चों के, इनके लड़के के साथ भी शूटिंग करी है, डबल ट्रैप। ये श्याम सिंह यादव जी मेरे साथ टीम में भी गए हैं, मैनेजर भी गए हैं, कोच भी गए हैं। मेरे को समझ नहीं आता, कभी कहते हैं मेरा दोस्त है, कभी कहते हैं मेरा शिष्य है, कभी कहते हैं कुछ। तो हमारे तो ऐसे रिलेशन रहे। और करण के साथ तो बिल्कुल ही घर वाली बात है। इनके फादर के जितना बोलो, मतलब क्या बोलो। एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को बोला कि जी मेरे बच्चे को शूटिंग में सिखाओ। मैंने कहा ठीक है जी। ये आए, मिले, और he had so much of talent. It's just that he couldn't take that talent to another level because he was so busy doing other things, with work-wise and, his politics and everything. So I think it's better he's got into politics, because I think he's going to be one of the most vibrant Indian politicians, I feel. At such a young age, he achieved so much with so much of dedication and hard work. इस जलसे के हीरो और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि हमारे जैसे, उन्होंने बताया कि कभी भाई जैसे, कभी दोस्त जैसे, कभी बेटे जैसे। वी हैड बीन एसोसिएटेड सिंस लॉन्ग, वी हैड बीन टीममेट। I had been his manager and coach of the shooting team whenever he went abroad. So there are so many things to tell about him, but due to paucity of time it is not possible. But I call him hero of India, world number 1, and continuously for 3-4 years he had been world champion. Again, what should I call him? Presently MP, Karan Bhushan Singh. He is also like my beta, son. Or he is really like a Bhushan. He is somebody spelled his name as Karan Singh Bhushan, so I call him Bhushan. So other dignitaries on the dais, principal, teachers, parents, shooting officers, including range officers, classification officers, and all those who are present before me, I welcome all of you here. And I'm grateful that Shalini ji, you invited me here. I was able to see such a grand college. जब हम पढ़ते थे, सड़कें नहीं होती थी। हम लोग एक लोहे की व्हील, गड़ारी जिसको बोलते हैं, सिकंजे में ऐसे बड़े मास्टर एक्सपर्ट हो गए थे। उसको गड़ारी को रोल करते हुए, हिंदी में कहते हैं गड़ारी को गड़गड़ाते हुए, रोड भी नहीं होती है, चक रोड पर जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। स्कूल कहने को था और स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। बगीचे के नीचे
बैठ करके पढ़ते थे। और जैसे आपने सुना होगा कि गुरुकुल होता है, हम उस तरह से पढ़ते थे। बगीचे की सारी पत्तियां साफ करके एक तरफ कर देते थे, सब लोग एक पटरी कंधे पर बिछाने का, पटरा भी नहीं होता था, हम लोग अपना बोरे का टुकड़ा लेके एक कंधे पर जाते थे और जब साफ कर लेते थे तो उस पर बिछा करके बैठ जाते थे। तो मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि हम कहां से कहां आए हैं। मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि encourage your ward to play so many games, and every boy and every girl has some skill, special talent for some particular sport. The sport in which he or she excels, he should adopt for his future. पहले वाला जमाना चला गया जब हम कहते थे जब हम पढ़ेंगे, जब हम खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। वो जमाना अब चला गया। Now your shooting sports gives you lot of career, different types of career also. But in shooting I was by default. When I was city magistrate, shooters came to me for permit of 5,000, 10,000 cartridges, and when we issued licenses 10 at a time, 15 at a time, I was very perplexed how I can give them 5,000, 10,000 cartridges. Then I talked to National Rifle Association, they sent me circular, तो I issued them permit और मैं उन्हीं के साथ हो लिया. In that way I started my shooting very long in career. But I could not do like Ranjan Sodhi because I was doing something when I was posted as Municipal Commissioner Agra. Even Sundays I could not find time for practice because Taj Mahal being at Agra, I had to stay there. Often some head of state, president or prime minister visited Taj, so I had to be there. In that way I left my shooting. But I must say about shooting, it has some added advantage. Every game has its advantage: football, volleyball, hockey, kabaddi, and of course cricket. But shooting has an added advantage like that when your ward shoots well, various paramilitary forces and army, they hold camp and they select young boys and girls. उनको ले जाते हैं, पढ़ाते हैं और उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अगर शूटिंग में डालेंगे तो अच्छा होगा. लेकिन जो समझते हैं कि हमको कहाँ तक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, शूटिंग से तो इतना ही मिलेगा. हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि वो गजेटेड ऑफिसर से भी शुरू करने लगे हैं. जैसे रंजन सोढ़ी, मानवजीत सिंह सिद्धू and so many shooters were lucky enough that they got directly inducted into police services. एकाग्रता, निष्ठा, दृढ़ संकल्प, संघर्ष, खेल भावना और सहयोग, ये सब मिलकर न केवल खिलाड़ी बनाते हैं बल्कि असली नायक भी तैयार करते हैं.